Hello everyone, in this video of Unit 5 Earthquake Resistant Design. So here we will see why earthquake resistant design is actually applied for a structure. So such design is very important जब हम कोई ऐसे जोन में डिज़ाइन कर रहे हैं स्ट्रक्चर को जो कि जोन 5 जोन 4 में हो अर्थक्वेक के, यहाँ पे बहुत ही फ्रिक्वेंट हो अर्थक्वेक का आना। तो हम एक ऐसे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना चाहते हैं जो कि अर्थक्वेक फोर्सेस को आसानी से रेजिस्ट कर पाए। So as we have studied in the course Engineering Geology, how the structure of Earth has been divided into three different layers of crust, mantle and core. Crust is a few kilometers thick, solid, thick layer, which is only just like floating on a semi-liquid or semi-solid mantle. सो ये जो लेयर हैं ये हमने पढ़ रखा है, पर ये जो प्लेट्स होते हैं क्रस्ट के प्लेट्स, दे कीप ऑन फ्लोटिंग ऑन द मैंटल. So due to the sudden relative movement of the surface of Earth, which may be from the magnitude from tiny to several feet, an enormous amount of energy is released. And this energy causes some breakage or slipping or some relative movement or some sudden such failures in the earthquake and tectonic plates, which may release energy even up to the as greater as nuclear bomb. सो सच हेयर, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन दिया है अर्थक्वेक के बारे में कि वाई दिस अकर्स व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव सडनली. और सडनली के कारण क्या हो सकता है, जो कहाँ से ये होता है, ये एट अ पॉइंट हाइपोसेंटर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फोकस. तो फोकस से शुरू होता है और फिर इसकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है थ्रू एपी सेंटर. एपी सेंटर क्या है? एपी सेंटर इज अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ just above hypocenter. So from this point the earthquake waves start spreading on the entire surface in a circular fashion, concentric circle, and it affects the entire region surrounding it. So we can see the damage of earthquake when it occurs in the beneath the ocean. क्या होता है, जैसे कि कोई दो टेक्टोनिक प्लेट्स अगर लॉक्ड है यहाँ पे, बट ड्यू टू सम रीजन इफ़ देर इज सम स्लीपिंग अकर्स, तो क्या हो सकता है, देर इज एट वन पॉइंट देर कैन बी अपलिफ्ट, एट अनदर पॉइंट देर कैन बी सबसाइडेंस. एंड ड्यू टू दीज टू different kinds of movement can lead to a development of huge high difference water current, which can be called as tsunami. Tsunami has a huge high water waves of huge magnitude, huge height, which is going to hit the coastal region severely. So we just have to know this concept basically. And the study of earthquake is called seismology. And earthquake is actually they travel in the fashion of vibrations. These vibrations are called waves, and these waves have been further classified as primary and secondary waves, P waves or S waves. So study of such waves is called seismology. And how do we measure those seismic waves? Through the device seismometer. Here is a layout of seismometer, and you can see the diagram which is being drawn here through the pen attached to the bob hanging from a string is the seismic graph. So these we have studied, and you just have to focus how the earthquake is going to affect our RCC structure. It is very unlikely than what we have studied till now, because till now we have studied only the transverse load. Transverse load, when they act on the structure or a portal frame, what happens, there is no sway. What is sway? I will explain you. It's what happens, actually the structure move like this. I am drawing diagram little magnified. All right, this kind of movement occurs, but the entire slab is affected just by sagging, and the columns remain at their own position, initial position only, but there is little movement. And the development of tension and compression phases are shown here. Tension phases are mostly shown here by red diagram. So these are the tension phases, whether you provide tensile reinforcement, or we can call it positive reinforcement. So just like these transverse load affect the structure like this, similar
Our the earthquake load is also affect our structure, but in different fashion. Earthquake is what? Earthquake is a lateral load. Lateral load means हॉरिजॉन्टल लोड. तो हॉरिजॉन्टल लोड क्या करती है, अगर ये मेरा फ्रेम है, सॉरी ये मेरा फ्रेम है, अगर then earthquake load is like this from this direction, and earthquake is not unidirectional, it is bidirectional, क्योंकि आप earthquake दोनों डायरेक्शन से लगती है. जैसे आप डायग्राम देखते हो सिस्मिक ग्राफ्स, दोनों तरफ से फोर्स लग रही होती है. और फिर इसे आप जानते होंगे कि earthquake दोनों डायरेक्शन में आती है. If I assume bidirection like this, this is the y direction, then earthquake can occur in the x direction, xx, x minus x, and earthquake can also occur in the z minus z, both the direction. Then what happens in this diagram, let me show you the earthquake acting in the both direction. So in short we can show instead of this that earthquake is acting like this, okay, bidirectional. So what happens, there is a development of sway is like this. पहले तो ये फ्रेम उधर जाएगी राइट साइड, फिर सिंस फोर्स बाई डायरेक्शनल है तब ये फ्रेम दूसरी दफ़ा इधर भी जाएगी, और ये कंटिन्यूसली फ्लक्चुएशन ऑस्किलेशन होता रहेगा पोर्टल फ्रेम का, एंड इट रियली गोइंग टू डैमेज आवर कॉलम्स. आवर कॉलम्स आर सीवियरली डैमेज्ड. हाँ, बीम्स और स्लैब्स आर गोइंग टू रिमेन एट द सेम लेवल और सेम लेवल, बट द कॉलम्स आर सीवियरली अफेक्टेड. So this concept I am going to show in this diagram. I have shown here in this diagram. You can see how the earthquake forces affect severely the columns of the structure. So there comes the picture of earthquake resistant design. So it's the design. Before going to design, we have to analyze different forces, earthquake forces that building is going to be subjected to. And if the building comes out to be resistant to earthquake, then such building is called earthquake resistant structure. And the design methodology that we have used is the earthquake resistant designs. So till now, whatever structure have been made, in some structure there may not have been such design practices have been opted. Like this, in this is a building which has not applied the methods of earthquake resistant design. Then what happens? When earthquake hits, there is a development of some cracks. Cracks, are you able to see it here? Some cracks here. This crack is just like this has isolated the entire building from the foundation. So for such a structure which has not exploited the use of earthquake resistant design techniques, so some special techniques have been developed, so we can use them. They are these base isolation technique and the seismic dampers. So इसे कहते हैं BID और फिर इसे कहते हैं seismic damper SD. So ये दोनों टेक्निक हम ऐसे स्ट्रक्चर में लगा सकते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक EQRD नहीं लगी है. अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिज़ाइन को EQRD भी मैं कह रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा. व्हाट इज़ द थॉट, क्या थॉट आया होगा. तो बेस आइसोलेशन क्या करता है? बेस आइसोलेशन इज एक्चुअली इट इज़ isolating, separating the building from what? From the ground. कैसे करता है? तो कुछ रबर डिवाइसेस का यूज करके. जैसे ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग आइसोलेटेड नहीं थी ग्राउंड से, तो ग्राउंड में अगर इधर सबसाइडेंस हुआ, अगर ये ग्राउंड मैं कहूँ कि ये ग्राउंड इधर से ये ग्राउंड ये सबसाइड कर गया या फिर सेटलमेंट हो गया, देन दिस बिल्डिंग इज श्योरली गोइंग टू बी अफेक्टेड. And in the seismic dampers are the devices which are introduced in the building and they damper का मतलब ही होता है कि they will damp the force. डैम्प कैसे होता है? कोई फोर्स, किसी फोर्स को डैम्प करना है तो उसे किसी ऐसे रेजिस्टिंग फोर्स में लगा दो कि वो ऐसी जगह वर्क करना, कुछ वर्क में लगा दो, उस वर्क को करता करता वो फोर्स अपनी एनर्जी को वहीं पे ख़त्म कर देगा. तो एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि एनर्जी वर्क होगा किसी जगह पे, तो सच एनर्जी इज एब्जॉर्ब प्रोड्यूस्ड बाय द सीज्मिक वेव्स.
So seismic dampers and BID are both are explained below very nicely. So base isolation device, they are very highly computerized devices. They contains different tools like sensors, computer hardware, actuators. This has been installed here. So no, this is seismic dampers actually. Our base isolation device is actually installed at the bottom. I should have kept this picture in the slide of seismic dampers, no problem. So here is a two set of pictures. फर्स्ट सेट इज़ दिस, जिसमें कि आप देख रहे हो दो बिल्डिंग्स, और दूसरे सेट में देख रहे हो फिर से दो बिल्डिंग्स. तो पहले बिल्डिंग में, पहले सेट ऑफ पिक्चर्स में देखो कि इन दिस द फाउंडेशन इज़ फिक्स्ड बेस. जनरली इन द बिल्डिंग्स हम अपने घरों में बनाते हैं, जितने भी सारे आप लोग देखते हो सारे मोस्टली फिक्स्ड बेस बिल्डिंग्स हैं. बट देयर हैव बीन सम बिल्डिंग्स इन विच द बेस आइसोलेशन बियरिंग इज़ यूज्ड, एंड सच बिल्डिंग्स आर कॉल्ड आइसोलेटेड बिल्डिंग्स. फिक्स्ड बेस बिल्डिंग का आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, जब फिक्स्ड बेस बिल्डिंग पे जब कोई अर्थक्वेक फोर्स लगती है तो अर्थक्वेक फोर्स दोनों तरफ से लगती है. तो क्या होता है, पहले तो ये बिल्डिंग इधर जाएगा, फिर ये बिल्डिंग इधर जाएगा. तो इस तरीके से ये ऑस्किलेट करता रहेगा. ऑस्किलेशन के कारण इसमें फेलियर के चांसेस बहुत ईजी है. बल्कि अगर हमने बेस आइसोलेशन डिवाइस बियरिंग का यूज कर लिया है तो वो बिल्डिंग क्या होती है, वैसी बिल्डिंग में कैसा रिस्क होता है, वो बिल्डिंग पे अगर फोर्स लगती है अगर इधर, तो ये बिल्डिंग थोड़ी सी इस तरफ जाती है, थोड़ी सी इस तरफ जाती है. क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, नीचे के बियरिंग्स होते हैं, पहले तो उन्हें लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं, फिर बियरिंग्स ही मूव करते हैं और वो उस बिल्डिंग को सेफली राइट साइड कर देते हैं. सो दिस स्टार्ट ऑकरिंग. सो बिल्डिंग इज जस्ट मूविंग in the on the base isolation bearing, so not much damage is occurred. So ये कॉन्सेप्ट है. और वैसे ही नेक्स्ट टेक्निक इज सीज्मिक डैम्पर. सीज्मिक डैम्पर इज दिस. इस डैम्पर में देख रहे हो कई सारे लेयर्स. तो कई सारे दीज मैकेनिकल डिवाइसेस एक्चुअली दे ऑब्जॉर्व द एनर्जी विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सीज्मिक वेव्स. अब एनर्जी कैसे कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इनमें कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ पे एनर्जी को, जैसे ड्रैग, विस्कोसिटी या कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेस को एब्जॉर्ब करने में उन फोर्सेस का एनर्जी ख़त्म हो जाता है. तो जस्ट लाइक इन सीज्मिक डैम्पर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दीज स्ट्रक्चर हेयर. सो दे प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर फ्रॉम अर्थक्वेक फेलियर्स. What are the kinds of seismic dampers? Seismic damper can be of three kind: viscous damper, friction damper, yielding damper. Viscous damper ऐसे अपनी गाड़ियों में, बाइक्स में भी देखी होगी viscous damper होते हैं. ये डैम्पर क्या है, आप देख रहे हो जैसे ये रही बिल्डिंग और इसमें इधर दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. तो ये जो है एज अ ब्रेसिंग, यहाँ पे एज अ ब्रेसिंग तीनों हम सभी फ्लोर्स पे हमने लगा दिया है. और फिर क्या होता है, इसमें पिस्टन जो है, पिस्टन इज इनसाइड अ container which is filled with a viscous fluid, and this fluid acts as a resistive fluid, and piston goes inside and outside as the earthquake force is applied on the structure. So ऐसा करने से क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क डन करना होता है स्ट्रक्चर को, और यहीं पे उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है. तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है. वैसे ये फ्रिक्शन डैम्पर. फ्रिक्शन डैम्पर में क्या है, हमने एक स्क्वायर सी एक फ्रेम बनानी है, और इसे स्क्वायर फ्रेम बनानी है स्टील प्लेट्स की और बोल्टेड कनेक्शन की. तो ये स्टील जो स्क्वायर फ्रेम है, जब अर्थक्वेक फोर्स लगता है तो किसी भी दो फ्लोर के बीच में स्क्वायर को क्या होना है, पैरेललोग्राम बन जाता है. जब फोर्स इस पर उधर लगता है, थोड़ी देर बाद ये पैरेललोग्राम ऐसा हो जाता है. तो इस तरीके से लेफ़्ट राइट जब फोर्स लगता रहता है तो पहले इस तरीके से जो फ्रिक्शन जो होता है प्लेट और बोल्ट्स के बीच में, इसके बीच में फोर्स की फोर्स डैम्प करना स्टार्ट हो जाता है, और फिर वहीं पे एनर्जी डैम्प कर जाती है और फिर स्ट्रक्चर सेफ रह जाता है. वैसे ही है यील्डिंग डैम्पर. यील्डिंग डैम्पर क्या है, बेसिकली दो लेयर्स हैं. दो लेयर्स शुरू में तो ऐसे हैं एक्चुअली, पर क्या होता है, दो लेयर मतलब कि दो मेटेलिक सीट हैं और उनके बीच में कुछ इलास्टोमर्स पैड्स हैं. ये पैड क्या है, जब इस पे अर्थक्वेक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है तो क्या होता है, टॉप पैड लेफ़्ट साइड जाता है
बॉटम वाला पैड इस तरफ रहता है। वैसे ही जब फोर्स उस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो टॉप वाला पैड राइट साइड जाता है, लेफ्ट साइड जाता है, और बॉटम वाला पैड इस तरफ जाता है। तो ये इस तरीके से कनेक्टेड भी रहता है। तो इस तरीके से एनर्जी डैम्प कर जाती है। ये कॉन्सेप्ट है टोटल different kind of seismic dampers. A seismic dampers really reduces our sway than the heavy sway which is conventional anti-earthquake building structure. So they really protect our structure, especially the columns. This is the column, and if you have used some techniques, either fixed bearing, this is a fixed bearing, and there is some movable bearing. तो फिक्स बियरिंग में डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। फिक्स्ड बियरिंग अगर है आपकी तो वहाँ पे डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा है। But this damage can be minimized if you have movable bearing. Movable bearing is not much subjected to damage. So this is the concept, and if we see, look at the differences between both the techniques, base isolation device and seismic damper. So these are, you can read it. This is cheaper as compared to seismic damper. This is very costly. seismic damper एक पूरी की पूरी बड़ी सी एक डैम्पिंग मैकेनिज्म आपको हर फ्लोर पे लगानी होती है। और फिर ये तब लगाया जा सकता है बेस आइसोलेशन डिवाइस जब ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है, और फिर क्या कहते हैं, बिल्डिंग हमारी बहुत ही कॉस्टली, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे ही दिस इज दिस शोज हाउ द परफॉर्मेंस, व्हाट इज द हाउ द सीज्मिक परफॉर्मेंस ऑफ अ बिल्डिंग इज इंक्रीज। सीज्मिक परफॉर्मेंस क्या है? सीज्मिक परफॉर्मेंस इज एक्चुअली द डक्टिलिटी। हमें स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें स्ट्रक्चर को डक्टाइल बनाना होता है। डक्टाइल की जस्ट अपोजिट आपको मैं बता देता हूँ, ब्रिटल होता है। एक मटेरियल होती है ब्रिटल, एक मटेरियल होती है डक्टाइल। ब्रिटल मटेरियल क्या होती है, उस पर फोर्स आपने लगाया कुछ मैक्सिमम फोर्स के बाद वो एक मैक्सिमम फोर्स पे पहुँचते ही स्ट्रक्चर क्या करती है, ब्रेक कर जाती है, यहाँ पे ब्रेक कर जाती है। पर डक्टाइल मटेरियल पे फोर्स लगता है ना, तो ब्रेक तो होती है लेकिन कुछ समय बाद जा कर के होती है। तो हमें भी स्ट्रक्चर को डक्टाइल बनाना होता है। डक्टिलिटी के कारण क्या होती है, स्ट्रक्चर कैन अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन, बट दे गिव अस सफिशिएंट वार्निंग सो एज टू take some precautions for safeguard against these dangers. So these kind of seismic performance is really increased when we apply earthquake resistant design techniques. So they really increase our ductility of the structure. ये डक्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसा हमारे अर्थक्वेक रेसिस्टेंट EQRD डिज़ाइन स्ट्रक्चर में होता है, और ऐसा उन स्ट्रक्चर्स में होता है जिसमें हम कुछ भी नहीं ये प्रैक्टिसेस करते हैं। तो क्या है कोड्स? व्हाट आर द डिफरेंट कोड्स ऑफ EQRD? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कोड्स: IS 4326, IS 1893, 13920। जिसमें से मैंने देखा है कि आपके कोर्स में बस ये दोनों है, IS 1893, IS 13920। दिस इज़ नॉट देयर, सो आई हैव रिमूव्ड इट. Actually, IS 4326 was nothing but just an introduction to the EQRD design and constructions of building. But the general standard criteria जो है EQRD का और जनरल प्रोविजंस हैं वो 1893 में है। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ना, तो वो मैंने वो कोर्स में भी आपके और वो मैंने इस स्लाइड्स में भी इंक्लूड किया, मैं ज़रूर अगले वीडियो में बताऊँगा। एंड 13920 क्या है? देखिए, पहला कोड 1893 आपको एक न्यूमेरिकल बनाने के लिए सफिशियंटली एबल कर देगा, ठीक है। 13920 क्या करता है? दे प्रोवाइड अस हाउ टू एक्चुअली अप्लाई दिस टेक्निक बाय प्रोवाइडिंग अ डिटेलिंग ऑफ reinforcement which is ductile in the structures subjected to seismic forces. Okay, we will meet in the next video.